हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम लोग नीट के 10 to 18 तक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 1 to 9 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन दैट सीरीज। 10 to 18 हम सॉल्व करेंगे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। ठीक है। तो एन आइडियल गैस इज मेड ऑफ पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ईच ऑफ द मॉलिक्यूल हैज 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल एंड f number of vibrational modes. The ratio of heat capacity Cp by Cv of gas is 8/7, and the value of F is, देखिए, टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, पॉलीएटॉमिक गैस, यू कैन से पॉलीएटॉमिक गैस U is equal to, now we have 3 degrees of translational degrees of freedom, 3 rotational degrees of freedom, and F number of vibrational modes. So it will be 3 by 2 kBt for translational degrees of freedom, then 3 by 2 kBt for rotational degrees of freedom, and then uh, what is there? F kBt. Okay. For this is multiplied by Avogadro's number. Okay. F kBt plus, sorry, not plus, into Na. N stands for Avogadro's number. So now it gets converted into U is 3 plus F kb Na T. Okay, kb Na T. So it gets converted into 3 plus F kb into Na gets converted into R, RT. So this is U, this is U. Now we know that molar specific heat capacity at constant volume is given by du by dt. So that is equal to 3 plus F R. Okay. 3 plus F R. This is equal to CV. So CV is equal to 3 plus F into R. Okay. Now we already know by Mayer's relation that CP is equal to CV plus R. So CP is equal to 3 plus F into R plus R. So from this, what do we get? CP as 4 plus F into R. So we have got CP, we have got CV, and the ratio of CP by CV is given as 8/7. The ratio of CP by CV is given as 8/7. So CP by CV is equal to 8/7, that is given over here, and that is equal to 4 plus F into R whole divided by 3 plus F into R. So from this, what do we get? 8 3s are 24 plus 8F is equal to 28 plus 7F. So from this, what do we get F as? We get F as 4. So the value of F is 4. Okay. So the correct option would be option number this 3. So the correct option for question number 10th is 3, where the value of F is 4.
नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। इन द मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स यूजिंग टर्मिनल वेलोसिटी experiment, spherical balls of same radius but having different densities are used. The ratio of terminal velocity v with the ratio of density of spherical ball sigma to density of liquid is best represented by. Okay, so for this thing we know, first let us write the terminal velocity equation. This is equal to 2 by 9. Then we have sigma minus rho, sigma minus rho r square g whole divided by eta. So from this, we have to find the relation between v and sigma by rho. So what we will do, we will take this rho out here. We'll take a rho out from the bracket. हम रो ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? V will become equal to 2 by 9. Then just 1 minute. Let me write it properly over here. This will be 2. This will be written as something like this: 2 by 9. Eta will come over here. Then r square g will also come over here. And rho will also come over here. What will be left inside? It will be sigma by rho minus 1. This will be left inside over here. ठीक है, अब ये जो चीज है, अब देखिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, तो अब ये जो आ गया, इसमें इस चीज को हम इस चीज को हम लोग को वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है, वाई एक्सिस पे। और ये जो चीज है, इसको हम ये दिखा दे रहे हैं, जस्ट इसको ग्रीन से दिखा देते हैं, देन ज्यादा सही रहेगा। ये जो चीज है, इसको हमें एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो चीज है ना, इसको हम कोई कांस्टेंट कह देते हैं। सॉरी, अंडू, जस्ट वन मिनट। इस चीज को इस चीज को हम लोग कोई कांस्टेंट कह देते हैं, से के। अब यहाँ पे आप जो भी चीज देख रहे हैं, R2 है या आर स्क्वायर है या जी है या रो है या ईटा है या नाइन है, सब के सब पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो के इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा? इक्वेशन क्या बन जाएगी? v जो आ रहा है, अब अगर आप इसको करेंगे तो ये क्या बन जा रहा है? v इज इक्वल टू के इंटू सिग्मा बाय रो माइनस 1, कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, अब अब ये किस फॉर्म की इक्वेशन आ रही है, जरा इसको ध्यान से देखिए। दिस इज कमिंग आउट टू बी अ फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट m इंटू x माइनस 1, कुछ ऐसा आ रहा है। तो अगर हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है, इसको अगर हम लिखेंगे, मतलब वन नहीं कहेंगे इसको। अभी देखिए यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको हम अभी, हाँ ठीक है, चलिए फॉर द टाइमिंग अभी हम कुछ नहीं इसको टच करें। तो ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम, कुछ इस फॉर्म का आ रहा है। ठीक है, कुछ इस फॉर्म का आ रहा है। ठीक है, तो जो ये होती है इक्वेशन ऑफ लाइन, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन है बेसिकली। तो अगर इसको आप देखेंगे, तो इसका क्या है, हमारा इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव इंटरसेप्ट आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो क्वांटिटी है पॉजिटिव है, तो नेगेटिव साइन के साथ ये नेगेटिव हो जाएगी, तो नेगेटिव इंटरसेप्ट आ रहा है। तो नेगेटिव इंटरसेप्ट कहाँ कहाँ है? देखिए सेकंड और फोर्थ में तो नहीं है, क्योंकि सेकंड में तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, तो ये तो नेगेटिव इंटरसेप्ट नहीं हो सकता। और ये फोर्थ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका इंटरसेप्ट ओरिजिन आ रहा है, जो कि नहीं है। ठीक है, अब फर्स्ट और थर्ड में देखना है। फर्स्ट और थर्ड में अगर हमें डिसाइड करना है तो कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए, फर्स्ट और थर्ड में दोनों के स्लोप पॉजिटिव है, वो ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि v, अब जहां सिग्मा बाई पी 1 है, वहां पे v की वैल्यू क्या है? जब सिग्मा बाई सॉरी सिग्मा बाई रो, जब जहां 1 है, वहां की v की वैल्यू क्या है? जहां सिग्मा बाई रो 1 हो जाएगा, वहां v 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला नहीं होगा करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर थर्ड। सो ये ऑप्शन नंबर थर्ड वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये इस फॉर्म का आ जा रहा है। ठीक है, ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द सोलर सिस्टम, आई एम सॉरी,
द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट ट्रेसिंग सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज प्रोपोर्शनल टू, अभी आपको ऑलरेडी पता है कि ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। तो इससे क्या आ जाएगा, ये आर पार 3/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी, टाइम पीरियड हो जाता है आर पार 3/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये तो इसमें कुछ सॉल्व करना ही नहीं था, ये तो एक गिफ्ट क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। अ सॉलिड स्फीयर ए ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड मास इस कैपिटल एम इज अटैच्ड टू अ एट अ पॉइंट to a smaller solid sphere B of radius small r less than capital R and small m less than capital M. Assume that the line joining their centers lies along the horizontal. The moment of inertia of the system calculated about the vertical axis passing to the center of A is IA, and that calculated about a vertical axis passing to center of B is IB. Then the difference IA minus IB. तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए IA क्या हो जाएगा। देखिए दोनों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है। तो देखिए आई ए का तो हम लोग क्या कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी, ए का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास, वो तो सीधे सीधे हमें पता चल जाएगा क्या हो जाएगा, 2/5 × mr²। अब अगर हमें इसका बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसके अबाउट, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा अबाउट दिस एक्सिस, ये रेड वाली एक्सिस है। और फिर हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। और ये दूरी कितनी है, दिस डिस्टेंस इज आर प्लस आर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा कि बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए, ये हम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि ये जो रेड एक्सिस है उसके अबाउट बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2/5 mr², ये हो जाएगा। और अब इसको हमें क्या करना है, इस एक्सिस के अबाउट देखना है, दैट इज ये जो जो जिस मतलब आइए जो जिस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं उसके अबाउट निकालना है हमें। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी m इंटू आर प्लस आर का स्क्वायर। तो ये हमारा आई आ गया। अब आई बी निकालते हैं। आई बी क्या है, आई बी अब बस हमने एक्सिस क्या कर दी, अब एक्सिस को हमने पास कर दिया थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉल बी और स्फीयर बी। ठीक है, उसके अबाउट हम निकाल रहे हैं। तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा, इस अब बी का तो आराम से निकल आएगा। बी का क्या हो जाएगा, 2/5 m r²। अब इसका ए का क्या करना होगा, ए का पहले हम क्या करेंगे, ए का हम पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ग्रीन लाइन के अबाउट निकालेंगे। ठीक है, और फिर उसका पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके ये अबाउट एन एक्सिस पासिंग टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ बी वो निकाल लेंगे। तो ठीक है, उसको करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, इसके अबाउट क्या कहते हैं, इस ग्रीन लाइन के अबाउट ए का क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, दैट विल बी 2/5 mr² प्लस mr प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। और हमें आई ए माइनस आई बी पूछा है, आई ए माइनस आई बी, सॉरी, आई ए माइनस आई बी पूछा हुआ है। तो ये क्या आ जाएगा, इसमें क्या क्या टर्म्स कट जाएंगे, ये वाला कट जाएगा, इससे ये वाला कट जाएगा, इससे बचा रह जाएगा बस आई ए माइनस आई बी करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एम आर प्लस आर का स्क्वायर, ये रह जाएगा माइनस कैपिटल एम आर प्लस स्मॉल आर के होल का स्क्वायर। इससे क्या आ जाएगा, आई ए माइनस आई बी इज इक्वल टू एम माइनस कैपिटल एम आर प्लस आर का, सॉरी, स्मॉल आर का स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन, यूरेनियम 238 कन्वर्टिंग टू थोरियम 234 एंड हीलियम 4। टेक masses of uranium 238, thorium 234 and helium 4 as this and this.
सॉरी, द क्यू वैल्यू फॉर द रिएक्शन इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नॉट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ध्यान दीजिएगा। इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही सब चीजें होती है जो ध्यान देने वाली होती है। एग्जाम में पता चला आपने सॉल्व कर दिया और आप क्या करके आ गए, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर टिक करके आ गए, और फिर उसके बाद पता चला कि आपको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मार्क करके आना चाहिए था, तो गड़बड़ हो जाएगा। खैर, यहाँ पे ऑप्शंस ऐसे दिए हुए हैं कि आप क्या कहते हैं ये गलती करने से बचेंगे, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होगा, कई बार ये गलती करने का चांस आपको देगा एग्जाम, तो इसलिए पहले से सचेत रहिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें क्यू वैल्यू जो निकालनी होती है, वो क्यू वैल्यू क्या होती है, वो होती है हमारी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ये होती है। तो हम पहले डेल्टा एम निकालते हैं। डेल्टा एम क्या होता है, इसमें जो हो जाएगा, ये सीधे सीधे इस ये जो रिएक्शन है, ये इसके लिए ये हो जाएगा 238.050। ठीक है, इसमें से माइनस क्या करना है, 234.043 प्लस 4.003। ठीक है, ये यू, ठीक है, ये आ जाएगा। अब एक बार से मिनट में, सो अब हमारा डेल्टा एम क्या आ जा रहा है, डेल्टा एम अगर हम देखें तो 238.050 माइनस 238.046, ये ऐसे आ रहा है। तो इससे हमारा डेल्टा एम क्या आ जाएगा, डेल्टा एम आ जाएगा हमारा 0.004 यू। ठीक है, तो एक मास यूनिट में ये चीज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सॉरी, ठीक है। तो हम इसको अब देखिए हमें क्या है, क्यू वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, क्यू वैल्यू के लिए हम इसको क्या कर देंगे, 0.004 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा क्यू वैल्यू जो आ जाएगी, दैट विल कम आउट टू बी, हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 3.726 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इन अदर वर्ड्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो की वैल्यू आएगी 3726 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो ये है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Consider a fixed, uniformly charged insulating sphere with radius capital R and charge plus Q. A point charge minus Q with mass small m is released from rest, okay, at a distance of 3r from the center of the charge sphere. ठीक है, a point charge minus Q, okay, 3r from the center of the charge sphere. When the point charges reaches the surface of a sphere, its speed is. अच्छा, तो चलिए पहले हम डायग्राम बना लें इसका। ये हमारा क्या है, ये हमारा स्फीयर है प्लस क्यू, इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, देखिए एलिप्स लग रहा है, लेकिन हमारा इंटेंशन यहाँ पे क्या है कि ये एक स्फीयर लगे। सो अगर एलिप्स लग भी रहा है तो अभी आप इसको मान लीजिए कि एक स्फीयर है। ठीक है, अब ये आर है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये आर है। इसमें एक और चीज बोला है कि चार्ज माइनस क्यू, कहाँ पे है, चार्ज माइनस क्यू, और इसका मास कितना दिया हुआ है, एम, स्मॉल एम, is released from rest at a distance of 3r from the center of the charge sphere. ये r है। अच्छा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज स्फीयर, तो यहां से यहाँ दूरी की ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ जो है इसकी, ये कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 3r। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे हमें करना क्या है, अब हमें ये निकालना है कि स्पीड क्या होगी जब ये माइनस क्यू चार्ज रीच कर जाएगा कहाँ पे, ऑन द सर्फेस ऑफ स्फीयर, यहाँ पे पहुंच जाएगा।
तो अब देखिए इनिशियल डिस्टेंस कितना है सेंटर ऑफ द स्फीयर से, 3r। फाइनल डिस्टेंस क्या है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर से, r। तो बस अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे बिटवीन इनिशियल पॉइंट, इसको हम कह देते हैं इनिशियल पॉइंट ए, और फाइनल पॉइंट बी के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, आ जाएगा आंसर। सो अप्लाइंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, वी गेट, अब देखिए के एट के ई एट ए प्लस पी एट ए इज इक्वल टू के ई एट बी प्लस पी एट बी। सॉरी, तो अब देखिए ये रेस्ट से रिलीज किया गया, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी। पी क्या हो जाएगी, पी अगर हमें लिखना है तो दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन 3r। इनिशियली ये हो जाएगा, और फाइनली यहां पे पहुंचने वाले थे, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रही है, हाफ एम वी स्क्वायर, कुछ ऐसी हो जा रही है, ठीक है। प्लस ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू माइनस क्यू, और जब फाइनली बी पहुंचा है तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दैट इज आर। तो इससे हम सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम इसको लिख देते हैं, अगर ये उस साइड चला जाएगा तो दिस विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, क्यू यहाँ पे ये आ जाएगा, इसके अंदर क्या आ जाएगा, 1/r -1/3r, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा हमारा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये तो आ ही जाएगा। तो 1 - 1/3 इज 1 - 1/3 इज 2/3, इससे कैंसिल करेंगे, ये 2 हो गया, ठीक है, और ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमें चाहिए था v, तो v क्या आ जाएगा, v विल कम आउट टू बी इक्वल टू क्यू, क्यू अपॉन 3 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्यू, क्यू अपॉन 3 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर, 3 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर, क्यू, क्यू अपॉन 3 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर, और कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1, क्यू, क्यू अपॉन 3 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, consider two circuits A and B, each having two resistors. One of them has a positive temperature coefficient of resistance alpha, while the other has negative temperature of coefficient minus alpha, as shown in the figure. The current through these circuits are denoted by IA and IB. At initial temperature, the resistance of the two resistors is R naught. As the temperature is increased, the correct option that describes the variation of the current in these circuits is. तो अब चलिए, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहली जो पहली सर्किट है उसके लिए फॉर ए, उसके लिए आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा, पहले वो निकाल लेते हैं। आर इक्वलेंट हो जाएगा आर नॉट 1 - अल्फा डेल्टा टी प्लस आर नॉट 1 + अल्फा
डेल्टा टी। सॉरी। तो इससे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आर इक्वलेंट क्या आ जाएगा? आर इक्वलेंट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 2r। इसका मतलब ये हमारा जो है इक्वलेंट रेजिस्टेंस इज कमिंग आउट टू बी अ कांस्टेंट। तो जो आई ए हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, और इससे हमारा आई ए क्या आ जाएगा? वी अपॉन 2r0। अब ये तो हमारा आ गया आई ए। तो ये करंट हमारा जो ए का है, मतलब करंट थ्रू फर्स्ट सर्किट, इट इज सर्किट ए इज कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट आ रहा है। तो देखिए इसमें कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है। पहला और चौथा तो चला गया, अब हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है जो हो सकते हैं? तीसरा और दूसरा। तो चलिए अब पहले अभी अभी दो ऑप्शन और उसमें से चूज करना है, तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है। कई बार हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं नीट में। जरूरी नहीं कि पूरा एंड तक हर चीज को सॉल्व किया जाए। कई कुछ स्टेप तक सॉल्व किया, पता चला कि हमारे ऑप्शंस जो है उसी से मतलब हाफे में ही हमारा आंसर आ जाएगा, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे जरूरत है तो कर लेते हैं। फॉर बी ये क्या आ जाएगा? अब यहाँ पे हमारा जो आर इक्वलेंट आएगा, ये क्या आएगा? देर इज आर नॉट 1 - अल्फा डेल्टा टी इंटू आर नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी, पैरेलल के लिए यही होता है, अपॉन आर नॉट 1 - अल्फा डेल्टा टी प्लस आर नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इससे ई और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब इससे आर इक्वलेंट क्या आ जाएगा? आर इक्वलेंट हमारा आ जाएगा आर नॉट स्क्वायर 1 - अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 2r0। आर नॉट एंड ये चला जाएगा। इससे हमारा आर इक्वलेंट क्या आ जाएगा? आर इक्वलेंट इज कमिंग आउट टू बी r0/2 1 - अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर, ये ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आर इक्वलेंट जो आ रहा है दैट इज नॉट कमिंग आउट टू बी अ कांस्टेंट। तो हमारा जो आई बी आएगा, आई बी दैट इज वी अपॉन आर इक्वलेंट, वो क्या होगा? क्योंकि हमारा ये क्या है हमारा आर इक्वलेंट, ये बेसिकली क्या है? कांस्टेंट नहीं आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी वेरिएबल। तो हमारा जो आई बी है दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी, दैट विल ऑल्सो नॉट कम आउट टू बी अ कांस्टेंट। वो कांस्टेंट नहीं आएगा हमारा। ठीक है। इनफैक्ट जैसे जैसे अगर आप यहाँ पे आप देख लीजिए, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, आई यहाँ पे क्या होगा? आई बी विल इंक्रीज। ठीक है, आई बी विल इंक्रीज, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ा तो ये जो हमारा आर इक्वलेंट है वो क्या होने लगेगा? ये कम होने लगेगा, और ये कम होने लगेगा तो आई बी विल इंक्रीज। सो आई बी विल इंक्रीज एज, ये हमारा क्या हो जाएगा? डेल्टा टी। डेल्टा टी से वेरिएशन बोला है ना? डेल्टा टी से वेरिएशन बोला है ना? हाँ। सो एज डेल्टा टी इंक्रीजेस। ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? और करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। A conducting loop of finite resistance lies in xy plane. There is a constant magnetic field in the z direction. The area of the loop varies with time t as a is equal to a naught 1 plus sine t in appropriate units. The figure that correctly indicates the quantitative behavior of the power p dissipated in the loop as a function of time
इज, तो हमें देखिए एक चीज पता है, यहाँ पे ये बोल रहा है, अभी हम यहाँ पे एक लूप बना लेते हैं। ठीक है, ये लूप है, और इसका जो एरिया बोल रहा है, ये कह रहा है ए इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस साइन टी, कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, और ये एक्स वाई प्लेन में है हमारा, तो मतलब हमारा मान लेते हैं इस पे, ये दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो है हमारा, दिस इज एक्स एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस ऐसे होगा, इसको हम जेड एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, और अब हमारा ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ही मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, और वो भी कांस्टेंट, आई थिंक ना, कांस्टेंट बोला है। ओके, दिस इज कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, तो उसको हम नाम दे देते हैं बी नॉट। ठीक है, बी नॉट, उसको कांस्टेंट नाम देते हैं। ठीक है, अब देखिए, हम यहाँ पे जो लूप है उसका एरिया वेक्टर जो है, वो भी किस डायरेक्शन में होगा, वो भी इस डायरेक्शन में हमें लेंगे। ठीक है, तो एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में लेंगे, चाहे तो हम ऊपर ले सकते हैं, चाहे नीचे ले सकते हैं, लेकिन हम क्या अभी यहाँ पे ऊपर ले लेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या है, फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ये होता है। तो इससे हमारा फ्लक्स क्या आ जाएगा, बी नॉट ए नॉट 1 प्लस साइन टी, ये आ जाएगा। ठीक है, ये फ्लक्स आ जाएगा। अब हमें ईएमएफ इंड्यूस निकालना होगा, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, -d फाई बाय dt। तो इससे क्या आ जाएगा हमारा, ईएमएफ इंड्यूस जो आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू -b नॉट ए नॉट। अब वन का डेरिवेटिव तो क्या कहते हैं, जीरो हो जाएगा, साइन टी का क्या हो जाएगा, साइन टी का कॉस टी। ठीक है, साइन टी का कॉस टी डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा ईएमएफ आ गया यहाँ पे। अब ईएमएफ आ गया, हमें पावर चाहिए, तो पावर किसके बराबर होता है, पावर इज इक्वल टू E² बाय R। तो हमारा जो पावर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू V0² A0² cos² T होल डिवाइडेड बाय R। ये हमारा आ रहा है पावर। अब यहाँ पे ये जो चीज है, B0² A0² और R, ये तो कांस्टेंट है, जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ये cos² T ही वेरी कर रहा है। अब हमें एक चीज पता है, ठीक है, हमें एक चीज पता है कि जो अगर हम कॉस का फंक्शन बनाए, अगर हम कॉस का फंक्शन बनाए टाइम के साथ, कॉस का अगर हम फंक्शन बनाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे कॉस एक्स वेरी कर रहा है, ये वाई है और ये एक्स और ये वाई है, तो कॉस का फंक्शन कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब क्योंकि ये कॉस स्क्वायर का फंक्शन है, तो ये जो नेगेटिव पार्ट है ना, ये भी ऊपर चला जाएगा। इसलिए ये जो हमारा जो फंक्शन होगा, ये कॉस स्क्वायर का फंक्शन, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो ये अगर हम यहाँ पे टी बना रहे हैं, और ये वाई का फंक्शन है, वाई यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर टी का वेरिएशन देख रहे हैं, तो ये ऐसा फंक्शन आ जाएगा, ऐसा कोई फंक्शन है। हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन टू दिस आंसर, टू दिस क्वेश्चन, सॉरी। ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, उस पे आ गए हम लोग। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अ फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन ईच ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मूव इन फ्री स्पेस, द रेशियो ऑफ लिनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन पीई टू दैट ऑफ फोटोन पी अपॉन वी एच इज। अब हमें पता है कि जो पीई होता है इलेक्ट्रॉन, ये हमें जो करना है, दैट इज इक्वल टू √2m ई, इसके बराबर होता है, 2m E0 हम ये कह सकते हैं। ठीक है, और फोटोन के लिए हम क्या कह सकते हैं, फोटोन के लिए यही जो चीज होगी, ये क्या हो जाएगी, फोटोन के लिए यही E/c बन जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ E0 सेम है दोनों का, तो यहाँ E0/c कर देंगे। तो अब पूछा क्या है यहाँ पे हमारा,
equivalent of PE to sorry PE to PH, तो PE to PH, PH ये किसके बराबर हो जाएगा? That is equal to अंडर रूट 2m E0, ये ऐसे आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय E0/C। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा हमारा? PE/PH, PH, ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2m/E0 यहाँ आ जाएगा, इंटू C बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या क्या, अब यहाँ पे क्या क्या चीज दी है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 9 × 10⁻31 दिया हुआ है। E0 की वैल्यू क्या दी हुई है? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं PE/PPH, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31, ये आ जाएगा। और 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? जस्ट लेट मी चेक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इंटू सी की वैल्यू क्या दी हुई है? सी की वैल्यू दी हुई होगी 3 × 10⁻8, 3 × 10⁻8 ये दी हुई है। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा? ओके, तो ठीक है, तो इसको हम पीई, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। हम इसको ऐसे लेते हैं PE/PH, PH। ओके, मिनट, ये आ जाएगा हमारा। इसको अगर हम ये कर दें, ये आ जाएगा, दिस इज 10। ओके, और इसको वैसे लिख सकते हैं 9.1 है, तो इसको ऑलमोस्ट हम 9 लिख सकते हैं, 9/16। ठीक है, 10⁻9 - 19 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 10⁻−12। ठीक है, क्योंकि 1931, हाँ ये 12 बन जाएगा। ठीक है, इंटू 3 × 10⁻8 ये आ रहा है। इसको सॉल्व करते हैं, और तो हमारा PE/PPH ये क्या आ जाएगा हमारा? दिस विल बी 3/4 इंटू 10⁻6 इंटू 3 × 10⁻8, ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा PE/PPH, that is equal to 9/4 into 10⁻2। So PE/PPH, 9/4 होता है 2.25 into 100, तो 2.25 into 100 will come out to be 225। सो ये इसका आंसर हो जाता है 225। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सो आई होप आपको ये सॉल्यूशंस समझ में आए होंगे। ठीक है, we'll come up again with next series of questions, that is from question number 19 to question number 27 in our next video. ठीक है, so until then let's say goodbye to each other. Bye bye, take care, have a nice day. Okay.